ایک تھا درزی، اس کے 3 لڑکے تھے۔ درزی بہت ہی غریب تھا۔ درزی کے پاس صرف ایک ہی بکری تھی۔ تینوں لڑکے اسی بکری کا دودھ پیتے اور کسی طرح سے گزر بسر کرتے۔ ایک ایک دن ہر لڑکا بکری کو جنگل میں چرانے لے جاتا۔ جب لڑکے کچھ بڑے ہو گئے تو بکری کا دودھ ان کے لیے کم پڑنے لگا۔ مجبوراً بڑا لڑکا گھر چھوڑ کر باہر کمانے نکلا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک سوداگر ملا۔ سوداگر نے لڑکے سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے سارا حال سنا دیا۔ سوداگر کو اس پر ترس آیا اور اپنے پاس نوکر رکھ لیا۔ سوداگر نے خریدنے اور بیچنے کا کام اس کو سکھایا۔ لڑکا اپنا کام بڑی ایمانداری اور محنت سے کرتا۔ تھوڑے دنوں میں سوداگر کے کام کو بہت آگے بڑھا دیا۔ سوداگر بہت امیر ہو گیا۔ سوداگر لڑکے کے کام سے اتنا خوش ہوا کہ وہ ہر وقت اس کو اپنے پاس ہی رکھتا۔ جب کام کرتے کرتے کئی برس گزر گئے تو لڑکے نے گھر جانے کی چھٹی مانگی۔ سوداگر نے خوشی خوشی چھٹی دی اور کہا، میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں۔ تمہاری ایمانداری کے بدلے میں تم کو یہ عجیب و غریب گدھا دیتا ہوں۔ یہ گدھا اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جب تم اس کے منہ میں تھیلی باندھ کر کہو گے کہ اگل، تو یہ فوراً سونا اگلے گا اور پوری تھیلی بھر دے گا، خواہ تھیلی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ لڑکا خوش خوش گھر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ لڑکا ایک سرائے میں ٹھہر گیا۔ بھٹیارے سے لڑکے نے کہا، خوب عمدہ عمدہ کھانا لاؤ۔ بھٹیارا اچھے اچھے کھانے پکوا کر لایا۔ لڑکے نے سونے کے ٹکڑے بھٹیارے کو دیے۔ بھٹیارا بڑا خوش ہوا اور سوچنے لگا، یہ سونے کے ٹکڑے لڑکے کے پاس کہاں سے آئے؟ ہو نہ ہو کوئی خوبی اس گدھے میں ضرور ہے۔ یہ سوچ کر بھٹیارا جاگتا رہا۔ جب لڑکا سو گیا تو گدھا چرا کر لے گیا اور دوسرا گدھا اس کی جگہ باندھ دیا۔ لڑکا اندھیرے منہ اٹھا اور گدھا لے کر روانہ ہو گیا۔ اس کو اپنے اصلی گدھے کی چوری کا کچھ حال معلوم نہ ہوا۔ گھر پہنچا تو اس کو دیکھ کر باپ بھائی سب جمع ہو گئے اور خوشی خوشی باتیں کرنے لگے۔ باپ نے پوچھا، کہو بیٹا، پردیس میں کیا کیا سیکھا؟ لڑکا بولا، سوداگری۔ باپ نے پوچھا، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ لڑکا، یہ گدھا۔ باپ، توبہ کرو، گدھا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں سینکڑوں گدھے مارے مارے پھرتے ہیں۔ بیٹے نے بتایا، نہیں ابا، یہ معمولی گدھا نہیں ہے، اس میں ایک خاص خوبی ہے۔ باپ، وہ کیا خاص بات ہے؟ بیٹا، اس میں خاص خوبی یہ ہے کہ اس کے منہ میں تھیلی باندھ دیں اور کہیں کہ اگل، تو یہ فوراً سونا اگلنے لگتا ہے اور تھیلی کو بھر دیتا ہے، خواہ تھیلی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ بوڑھا درزی بیٹے کی بات کو تعجب سے سنتا رہا اور شک کی نظروں سے دیکھتا رہا۔ آخر لڑکے نے باپ کے شک کو دور کرنے کے لیے کہا، آپ اپنے دوستوں کو بلائیے، میں ابھی سب کو دولت سے مالا مال کیے دیتا ہوں۔ درزی نے اپنے خاص خاص دوستوں کو لا کر جمع کیا اور دولت حاصل کرنے کی خوشخبری سنائی۔ سب لوگ آ گئے تو لڑکا گدھا لے کر آیا، اس کے منہ میں تھیلی باندھی اور کہا کہ اگل، لیکن گدھا جوں کا توں کھڑا رہا۔ لڑکے نے کئی مرتبہ چلا چلا کر کہا، اگل اگل، لیکن نتیجہ تو کچھ نہیں نکلنا تھا۔ تھیلی جیسے خالی تھی ایسی ہی رہی اور گدھا چوپ چاپ کھڑا رہا۔ اب لڑکا سمجھا کہ بٹیارے نے گدھا چرا لیا۔ درزی اپنے دوستوں کے سامنے بڑا شرمندہ ہوا۔ لڑکے پر خفا ہونے لگا، تو نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا۔ لڑکے نے سارا قصہ اپنے منجلے بھائی کو سنایا۔ اب دوسرا بھائی جو ہے وہ سفر پر روانہ ہوا۔ کئی دن تک برابر چلتا رہا، رات کو پیڑ کے نیچے سو رہتا۔ آخر ایک دن اس کو ایک بڑھیا ملی۔
बुढ़िया जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। लड़का बुढ़िया के साथ रहने लगा। बुढ़िया जो काम बतलाती उसको बड़ी मेहनत से करता। बुढ़िया उसके काम से बड़ी खुश थी। एक दिन लड़के ने घर जाने को कहा। बुढ़िया ने दुआओं के साथ रुखसत किया और कहा कि देखो बेटा, मेरे पास एक सीनी है, जब कहोगे कि भर जा तो ये बेहतरीन खानों से भर जाएगी और जितने आदमी बैठे होंगे पेट भर कर खा लेंगे। तुम ये सीनी लेते जाओ। लड़का सीनी पाकर बहुत खुश हुआ और घर की तरफ चला। रास्ते में उसको वही सराय मिली जहां बड़े भाई का गधा चोरी हो गया था। रात बसर करने के लिए रुक गया। भटियारे ने खाने के लिए पूछा। लड़के ने कहा, मैं तुमको खिलाऊंगा। भटियारे ने कहा, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम कहां से खिलाओगे? लड़के ने कहा, ठहरो। सीनी ने सामने निकाल कर रख दी और कहा, भर जा। ये कहते ही सीनी अच्छे अच्छे खानों से भर गई। भटियारा इस निराली सीनी को लालच भरी नजरों से तकने लगा और उसको चुराने की तरकीबें सोचने लगा। लड़का काफी थक चुका था। खाना खाते ही सो गया। भटियारा ताक में तो लगा हुआ था। जब लड़का सो गया तो चुपके से आया और सीनी उठाकर ले गया और उसकी जगह पर दूसरी वैसी ही सीनी रख दी। लड़का सुबह सवेरे उठा और सीनी लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचा तो बाप और भाई सब उसको देखकर खुश हो गए और बातें करने लगे। लड़के ने अपने सफर का हाल बयान किया और मजे ले लेकर सीनी की खूबी बयान की। दर्जी को सीनी की इस खूबी का यकीन न आया। लड़के ने कहा, इम्तिहान ले लीजिए, आप लोगों को बुलवाइए, देखिए मैं अभी सबके सामने अच्छे अच्छे खाने चुनवाए देता हूँ। लड़के ने जब बहुत ही इसरार से सीनी की खूबी बयान की तो बाप ने अपने चंद दोस्तों की दावत की। सब लोग गोल दायरा बनाकर बैठे और बीच में सीनी रखी गई। लड़के ने कहा, भर जा, लेकिन सीनी खाली की खाली ही रही। उसने फिर कहा, भर जा, लेकिन फिर भी कुछ न हुआ। 3-4 मर्तबा चिल्ला चिल्ला कर कहा, भर जा भर जा भर जा, लेकिन सीनी वैसी ही खाली खाली पड़ी रही। सब लोग लड़के का मुंह तकने लगे और उसे झूठा बताने लगे। लड़का बहुत शर्मिंदा हुआ और बाप तो मारे शर्म के पानी पानी हो गया। लड़के को एक तो सबके सामने शर्मिंदगी का अफसोस था और दूसरी असली सीनी के गुम हो जाने का। उसने अपने छोटे भाई को बुलाया और सारा किस्सा बतलाया। ये छोटा भाई समझ गया कि यकीनन भटियारे ही की शरारत है और उसने गधा और सीनी दोनों चीजें चुराई हैं। छोटा भाई बहादुर भी था और अक्लमंद भी। हिम्मत बांधकर रवाना हुआ और ये दोनों चीजें जहन में रख ली कि मैं जरूर वापस लाऊंगा। कई दिन चलने के बाद उसका गुजर एक मैदान से हुआ। ये मैदान परियों का था। रंग बिरंगे फूल चारों तरफ खिले हुए थे। हरी हरी घास सब्ज मखमल की तरह फैली हुई थी। बीच बीच में पानी की सफेद नहरें बह रही थी। हवा खुशबू में बसी हुई थी। लड़का दम लेने के लिए सस्ताने के लिए ठहर गया। हवा की मस्त खुशबू ने आंखों में नींद भर दी और वो जल्दी एक गुलाब के पौधे के पास पड़कर सो रहा। लड़का भी सोया ही था कि नीलम परी जो उस गुलाब पर रहती थी उतरी और लड़के को हवा में लेकर उड़ गई। दूसरे दिन लड़के ने अपने आप को बहुत ही घने जंगल में पाया। वो कहाँ है, यहाँ कैसे आया? अभी इन बातों को वो सोच ही रहा था कि सारा जंगल तरह तरह की आवाजों से गूंजने लगा। उसके बाद यकबयक लाल रंग की रोशनी सारी जंगल में फैल गई। लड़का बड़ा परेशान हुआ, बार बार सोचता, कुछ समझ में ना आता। इतने में बड़े जोर की आवाज उसके कानों में आई और सारा जंगल नीले रंग में रंग गया। इस आवाज को सुनकर लड़का कांप गया और घबराकर एक तरफ भागा। उसके भागने पर जंगल की सब परियां हंस पड़ी। बात ये थी कि परियां लड़के से खेल रही थी। जब परियों ने अपना खेल खत्म कर लिया तो नीलम परी छम छम करती हुई लड़के के पास आई और बोली, तुम हमारे मैदान में क्यों आए? लड़का, मुझे नहीं था मालूम कि मैदान आपका है, यहाँ आना मना है, अब कभी नहीं आऊंगा।
नीलम परी हंसते हुए, क्या मैदान पसंद नहीं? लड़का, जी मैदान तो पसंद है, लेकिन ये जंगल। क्या डर लगता है? नीलम परी ने कहा। लड़का, जी हाँ। नीलम परी ने कहा, अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। इधर लड़के ने आंखें बंद की, उधर परी ने हवा में अपना आंचल हिलाया और सारा जंगल फिर उसे हरे भरे मैदान में बदल गया। लड़के ने आंखें खोल ली और खुद को हरे भरे मैदान में पाया और मैदान देखकर की जान में जान आई। लड़के को जब जरा इत्मीनान हुआ तो नीलम परी ने पूछा, तुम कैसे आए? लड़के ने दोनों भाइयों का सारा किस्सा सुना दिया और कहा कि वो सीनी और गधा वापस लेने जा रहा है। परी ने ताली बजाई, फौरन दो देव हाजिर हुए। परी ने हुक्म दिया कि जाओ, सराय वाले भटियारे से सीनी और गधा छीन के लाओ। देव आनंद फौरन सराय में पहुंचे और चंद मिनट में सीनी और गधा लाकर हाजिर कर दिया। परी ने लड़के से कहा, ये गधा और सीनी लो। परी ने लड़के को एक डंडा भी दिया और कहा, जो शख्स तुम्हारा दुश्मन होगा उसकी तरफ इस डंडे को फेंक कर कहना, नाच। फिर ये डंडा उस आदमी की पीठ पर खूब नाच दिखाएगा, इतना मारेगा कि वो आदमी बेहोश हो जाएगा। लड़का सीनी, गधा और डंडा लेकर घर जाने के लिए तैयार हो गया। परी ने देव को हुक्म दिया कि जाओ, लड़के को घर तक पहुंचा के आओ। देव ने हुक्म पाते ही लड़के को तमाम सामान के साथ हाथ पर उठा लिया और हवा में उड़ता हुआ आन के आन में घर पहुंचा। घर के सब लोग जमा हो गए। छोटे भाई ने सबकी खूब दावतें की और सोने के टुकड़े भी बांटे। दर्ज की शर्मिंदगी भी दूर हो गई और बड़े भाई भी खुश हो गए और सब लोग हंसी खुशी रहने लगे।